हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल ऑन द कैटलिस्ट। स्वागत है सभी का। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर 20th मे करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, सो गिव मी अ फ्यू सेकेंड एज वेल। सो आई थिंक आपको सब कुछ विजिबल होगा, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर 20th मे करंट अफेयर्स, राइट। सो 1 सेकेंड, कुछ टेक्निकल इश्यू है। आई थिंक अभी एकदम क्लियर है। चलिए, सो यहाँ पर एक स्टडी सामने आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। According to this study, what is said that long work hours can cause heart stroke. And in this COVID-19 pandemic era, work from home, you are aware about that around 8 hours regularly, how much any पर्सनल और एक कर्मचारी को 8 घंटे देने होते थे, आजकल वो 11 to 12 आवर्स ही हैज टू पे। एंड दिस मच लॉन्ग आवर्स can cause cardiac attack and many various heart related disease. So this had said by WHO and ILO recent study. So long working hours is now established a risk factor, largest occupational disease burden. ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके कारण डिजीज का बर्डन होता जा रहा है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड वर्क रिलेटेड बर्डन ऑफ डिजीज। सो ये जो लार्जेस्ट वर्किंग, दिस मच लॉन्ग वर्किंग आवर्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक. So what are recent findings are here? Those who are working 55 hours per week, 55 hours per week lead to 3.98 lakh people died from stroke, that means heart stroke, and 3.47 lakh from heart disease in 2016. So day by day it is increasing. And what we had seen from 2000 to 2016, the number of deaths from stroke due to long working hours increased by 19%, and from heart it is 42%, because there is a paradigm shift in the working style. Nowadays people want to be successful, that is why they are working more and more, and this causes such disease. The work related disease burden is particularly significant in men. पुरुषों में ज़्यादा है, 72% that occurred among males. That means remaining, and what is remaining? 28% in female. So because what we had seen, there is a discrimination in the job as well, because male chauvinist job is dominant. Male are dominating the jobs because this era is male chauvinist, मतलब कि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण. सो पीपल लिविंग इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन्स, मिडिल एज्ड और ओल्डर वर्कर, तो यहां पर ये सब दिक्कतें लगातार आ रही है. मोस्ट डेथ वर अमंग द पीपल एज 60 to 79. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट विल डिक्रीज. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जीवन प्रत्याशा दर लगातार गिरती चली जाएगी. Who had worked for 55 hours or more per week between the age of 45 to 74. तो यहां पर इस प्रकार से डेथ देखी गई. The study conclude that long working hour is associated with an estimated 35% higher risk of stroke and 17% higher risk of dying the ischemic heart disease. ischemic का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होना, है ना, ब्लड फ्लो प्रॉपर ना होना. सो कंपेयर टू वर्किंग 30 to 40 आवर्स अ वीक. तो हमें एक लिमिट में काम करना चाहिए, लेकिन आजकल तो शेड्यूल ही ऐसा बन गया, व्हाट वी कैन से, बिकॉज कंपनीज वांट टू मेंटेन देयर बैलेंस शीट, एंड दैट इज व्हाई दे मेड द पीपल कोलू का बेल, और वी कैन से वर्काहॉलिक. दे मेड द पीपल वर्काहॉलिक, right?
कोल्लू का जो बैल होता है जो लगातार काम करता रहे. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टू मेंटेन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी. सो रीजन फॉर अ लॉन्ग वर्किंग आवर ड्यू टू द COVID-19 pandemic, number of people working long hours is increasing, and this trend put even more people to risk of work related disability and early death, premature death. Right, so not premature death is different, so early death. Teleworking has become the norm in many industries, often blurring the boundaries between home and work. So teleworking is also a complexity. I had already told you 8 hours job became 12-hour jobs, work from home. So many businesses have scaled back or shut down its operations. So यहाँ पर देखिए, many businesses have scaled back and shut down the operation, and people who are still on payroll end up working long hours. So ultimately this is a study, so we have to communicate on World Health Organization as well. So it was a United Nations specialized agency which was founded in 1948. The headquarters is located in Geneva, Switzerland, and around 194 member state, 150 country में offices हैं, 6 regional offices हैं WHO के. It is intergovernmental organization and works in collaboration with number of states, usually through Ministry of Health. तो Ministry of Health के साथ में coordination करके अपना काम करता है. So very important, when it was established on 7th April 1948, and that is why 7th April is celebrated as World Health Day. My question to you is on which day we celebrate Indian Doctor Day? भारतीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? दिस इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7th अप्रैल. चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? डॉक्टर डे इन इंडिया पूछ रहा हूं. एंड सेकेंड इज ऑन whom behalf, किसके आधार पर यह मनाया जाता है? Who was the personality to remember him? We are celebrating Indian Doctor Day, right? चलिए ये आपको बताना है. International Labour Organization ILO celebrated its 100th anniversary in 2019. इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट वाज मेड इन 1919 में इसे बनाया गया था, 1919 में. अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसके साथ जुड़ा हुआ है ILO के साथ, राइट? ILO is a tripartite UN agency. It brings together governments, employers, workers of 187 member states. तो it is tripartite क्यों? Why? Because governments, employers and workers of 187 member states to set labor standard, develop policy and devise, मतलब कुछ नए प्रोग्राम को जो बनाया जाता है, डिवाइस प्रोग्राम promoting decent work for all for women and men. So ILO is a tripartite principle. Negotiation within the organization are held between a representative of the government, trade union and member state employers. So this is 3 bodies among which it is working. So member state employers, trade union and representative of governments. So what is the history of ILO? It is very important. In 1919 it was established by the Treaty of Versailles as an affiliated agency of League of Nations. आपको याद आ रहा होगा 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. And before this, such kind of agency after the World War First, in 1945 it was created after World War Second, but World War First के बाद में भी दुनिया में शांति रहे, है ना, पीसफुल एनवायरमेंट रहे, इसीलिए लीग ऑफ नेशन, है ना, लीग ऑफ नेशन, दिस वाज क्रिएटेड.
लीग ऑफ नेशन, राइट। सो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के तहत इसे बनाया गया 1919 में। become the first affiliated specialized agency of United Nations, and it became the specialized agencies like WHO. So 1946 में specialized agency बनी है। Where is the headquarter? It is located in Geneva, Switzerland again. So यहाँ पर आपको दोनों के headquarters जरूर पता होने चाहिए। Background क्या है देख लीजिए, both consist the headquarter in Geneva. One is created in 1919 and second one is created, WHO was created in 1948, right. So Nobel Peace Prize भी ILO को दिया गया है, right. चलिए, तो it promotes internationally recognized human and labor rights. देखिए सेकंड जो आपका आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पूरे भारत में, दुनिया में पेंडेमिक चल रहा है, स्टिल सेंसेक्स ब्रीच्ड 50,000। देखिए लोगों के पास पैसा है और इवन जीडीपी डाउनग्रेडेड हो रही है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, जिस भी कई बार दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर, जीडीपी अपॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस मार्केट, कि हाउ मच कैपिटलाइज्ड दिस मार्केट, कितना मनी इन्फ्यूज्ड है सेंसेक्स निफ्टी इत्यादि में, दैट रेशियो कैन प्रोवाइड द स्टेबिलिटी and that also provide the growth in share market, because GDP is degrading but Sensex is increasing. That means what is happening, the Sensex and these capitalized market is dealing with the GDP of India, because people have money and they are keep on investing in different things. And one more thing, why day by day increment in the Sensex? Because in the lockdown period many people who relaxed from the job, who relaxed from the work hours that is why they had taken interest by watching the YouTube videos and how we can have investment in Sensex and Nifty and any of the market. And that is why it is keep on increasing, because people are investing more and more nowadays. So the constant decline in the COVID cases, so one of the reason why today I am talking about this, constant decline in COVID cases, day by day it is declining. We had a peak of 4,12,000 in a single day cases. Now day by day it is decreasing. And we have increased the we have infused the vaccination program. How? आपने सुना होगा Johnson and Johnson is coming, Sputnik is working its role, so we will have a very quick vaccination in all over India. This is a good sentiment for the market. And the benchmark indices BSE, Sensex and NSE Nifty, so where it reached, Bombay Stock Exchange reached the mark 50,000 and 15,000 NSE reached. So this is the respectively and it is first time it happened. So reason for the market rise, the resistance of the union government to announce a nationwide lockdown provided a big relief in the market in March, April. So union government announced nationwide lockdown, which was especially in April 2021. Opening up of vaccination for all adult and decline in the COVID cases has boosted the hope of a less hindered का मतलब बिना बाधा के industrial activity going forward. But the second COVID wave has impacted the rural India. So it left from the cities, now it reached to rural India, and also smaller companies and unorganized sectors which are related to villages much more than it did first phase in last year. So it affected unorganized sector, but Sensex and NSE, these are organized stock markets. So large listed companies across the sector have benefited at the cost of smaller one, because large sectors, because all the registered companies are 50 top
companies, 100 top companies, 30 top companies are in BSE. So this is increasing because these are the organized sector. This is leading to rise in their share price and market valuation, thereby resulting into growth in the Sensex and the other leading indices, right? तो आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए दोनों आर्टिकल्स इकोनॉमी से रिलेटेड है. सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1885 1885 में एस्टेब्लिश हुआ था. एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड. रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? रेट्रो का मतलब पास्ट में, इफ द गवर्नमेंट हैव एनी abnormalities, any kind of problem, and from past some tax is not collected from the government of India. So let's assume that in the present era, that is 2021, and in 2005, from 2005 any company came and we have applied a retrospective tax. That means that company has to pay for this 16-year taxes along with it. So it will be a burdensome for the company. That is retrospective tax demand. So you had aware about it that Cairn India, Cairn is a company of United Kingdom. It has left its offices and it is completely closed down all the centers in India. And you are aware about it as well that in Rajasthan and many places, Cairn India explored many gas and petroleum oil centers like Bhagyam, Aishwarya, Mangalam, etc. and many more. So Cairn India argued that India's retrospective taxation was a breach. Breach का मतलब उल्लंघन है of the India-UK bilateral investment treaty. It is a breach that Cairn Energy said, which obligated India to treat investment from UK in fair and equitable manner. So if this such kind of scenario, like we had applied retrospective tax, Cairn went its home in UK. Now the problem is India's market is not that flourish. No one will take interest to invest in India if India will do such kind of formation of tax collection. But it is necessary as well. So there must be balanced approach. But what had happened actually in the last days, Cairns is suing. So you had aware about it that we have to pay 1.2 billion arbitration award. Before 2, 3, 4 months before, I had read this news that 1.2 billion arbitration award that we have to pay, that we had taken from Cairn, and Cairn get loss in India. So Cairn suing Air India. Now what is happening all over the world? See, Air India's New York to seize its asset to enforce the 1.2. So Cairn India suing. तो Cairn India sue कर रही है, मतलब फाइल करे केस, and it won against the Indian government in the retrospective tax dispute. So in the different places where India's investment that should be seized, this all Cairn is suing. So in the same way, we had seen a case of Vodafone in 2012. The Supreme Court ruled that the series of transactions involving Vodafone did not attract capital gain, but basically Vodafone is now part of VI. You are aware about it, Vodafone Idea. So this same had happened in the form of retrospective tax was also applied to Vodafone case. So it is said that these transactions did not amount to transfer of capital assets within meaning of section 214 of Income Tax Act. So it is said that the transaction did not amount to transfer of a capital asset within the meaning of. So यहाँ पर retrospective taxes are very heavy burden for the companies, right? So the government amended. Ultimately the government amended the इनकम टैक्स एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली. तो जब हमने ये देखा वोडाफोन के केस में
ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन डिड नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर, इसने नहीं दिया, देन वी हैड क्रिएटेड अ इनकम टैक्स एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली, और रेट्रोस्पेक्टिवली व्हेन this act applied, later the authorities, those who are collecting the tax, they also impose the tax on Cairn India. This is the tug of war. Here it became the bone of contention, right? So the 2012 amendment, the asset or the capital asset being any share, interest in the company, entity registered or incorporated outside India shall always be deemed to have been situated in India if the share or interest derive its values substantially from the asset located in India. So यदि भारत के अंदर किसी भी विदेशी कंपनी का लोकेशन है और वो यदि कुछ कमा रहा है, शेयर कमा रहा है, तो they has to if the share or interest derives its value substantially from the assets located in India, so in that case retrospectively they will impose the tax. So retrospective taxation क्या होता है? This taxation allows a country to pass a rule on taxing certain product, items, services, deals and charge companies from a time behind date, किसी पिछली डेट से on which the law is passed, जिस डेट से, मान लीजिए लॉ पास हुआ है 2018 में, but this law said that we will collect the taxes retrospectively from 2005. That means those companies which are coming under the purview of it, they have to pay from 2005 to 2018 tax year on year, and compounded. Sometimes there may be compounded interest as well. So this route is used by the countries to correct any anomalies. Anomalies का मतलब कोई भी टैक्स में हमने कमी छोड़ दी है, दैट एनिमलीज कैन बी करेक्टेड इन देयर टैक्सेशन पॉलिसी. ऐसा नहीं है भारत ही देश ऐसा है, ऐसे बहुत सारे देश हैं. पास्ट में कुछ ऐसी कंपनी रही हो टेक एडवांटेज सच लूप होल्स, और किसी कंपनी ने भारत के इस टैक्स प्रोविजन को नहीं अप्लाई होने के कारण बहुत सारा जो है एडवांटेज लिया हो, इन दैट केस दैट विल बी अप्लाइड. सो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट टू टैक्सेशन लॉ एंड अप हर्टिंग कंपनीज. फाइनली क्या होता है, कई कंपनीज को हर्ट करता है, एंड सच काइंड ऑफ एक्ट विल नॉट बी बिजनेस फेवर्ड, एंड दैट इज व्हाई देयर विल बी लैकिंग ऑफ एफडीआई in India or any country which is applying retrospective taxation. So FDI or FII, there will be lacking of FDI investment and FIIs. So apart from India, countries like US, UK, Netherlands, Canada, Belgium, Australia have retrospectively taxed companies. उन्होंने कई बार ऐसा retrospectively taxed companies बनाई, एक्ट बनाया. So यहाँ पर अगले आर्टिकल की तरफ चल रहे हैं. Age of plate tectonics. First and foremost, I want to tell you this is related to geography and paper 1. So related to geomorphology, none of the planet in this solar system having plate tectonic process, even not in Mars, but India has plate tectonic. And recently what we had found, the study on the oldest mineral on the earth, zircon crystal. This zircon crystal 4.3 billion year old of Jack Hill, Australia. We had recently found a zircon crystal revealed that the plate tectonics are 3.6 billion year old and they are moving continuously since they emerged. तो plate tectonic theory आपको पता होगा. What is plate tectonic theory? This is mid oceanic ridge. समुद्र, पैसिफिक ओशन, मान लीजिए ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, तो यहां पर बीचों बीच मिड ओशियनिक रिज है. यहां पर मान लिया एशिया, यहां पर मान लिया नॉर्थ अमेरिका. दिस इज सो यहां पर क्या हो रहा है, दिस प्लेट यहां पर नीचे एस्थेनोस्फीयर है. एस्थेनोस्फीयर जो लगभग अर्थ के जो क्रस्ट है ऊपर वाले पार्ट से 100 to 400 किलोमीटर नीचे, 100 to 400 किलोमीटर बिलो द अर्थ. Now this one is rotating. Now this one is rotating in this dimension, and this one is rotating in. That is why the above plate, this plate
इज मूविंग इन दिस डायमेंशन, इन दिस डायमेंशन। आपको बताना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था, ये जरूर बताना है। और ऐसा लगातार देखिए, मान लीजिए मैंने ये मिड ओशियनिक रिजेस हैं, यहां पर आपको पता होगा कि नीचे की जो प्लेट है वो ऐसे मूव कर रही है, इसीलिए जो ये इंडो प्लेट है, इंडो प्लेट वो आगे की तरफ इस तरह से लगातार मूव कर रही है और इसीलिए हिमालय की हाइट लगातार बढ़ती जा रही है। सो दिस इज बिकॉज द बिलो दिस पार्ट इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर, क्रस्ट के नीचे 100 to 400 किलोमीटर। व्हाट वी हैड कंसीडर बिफोर, पहले हम क्या सोचते थे कि रिसर्चर्स हैव थॉट दैट दीज प्लेट फॉर्म एनीवेयर फ्रॉम 3.5 to 3 billion ईयर अगो, but this zircon crystal we have got that 3.6 billion year ago we have continuously moving the plate tectonic. So zircon crystal are dense oldest crystal है ये, so it is easy to separate from the rest of the sand by using method of akin to gold panning. इस मेथड की मदद से हम इसको अलग कर सकते हैं, akin to gold panning. At akin to gold panning, the researcher studied uranium content। और आपको पता होगा जिस प्रकार कार्बन डेटिंग मेथड है, इसी प्रकार से यूरेनियम डेटिंग मेथड है, और इसकी मदद से हम लोग ओल्डेस्ट जो रॉक्स हैं उनको रिसर्च करते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच नोन रेट ऑफ डिके, और ये रेडियो एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये कुछ बिलियन ईयर्स का इसका जो है अपना हाफ लाइफ पीरियड होता है, अर्ध आयु काल ऑफ ईच जिरकॉन टू डिटरमाइन देयर एज। और इससे एज का पता चला और यहां से एक अंदाजा लगाया कि प्लेट टेक्टोनिक कब स्टार्ट हो चुका था ऑन अर्थ। दे ऑल्सो स्टडीड एल्यूमिनियम कंटेंट टू नो द अर्थ क्रस्ट थिकनिंग ऑन एट द टाइम। अर्थ क्रस्ट कैसे थिक हुई उसके लिए एल्यूमिनियम कंटेंट पर रिसर्च करके पता लगाया जा रहा है। आपको पता होगा ऐसी 7 मेजर प्लेट और 20 माइनर प्लेट्स हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा। इंडो ऑस्ट्रेलिया मेजर प्लेट है, यूरेशियन प्लेट मेजर प्लेट है, लेकिन जब हम लोग माइनर प्लेट की बात करते हैं, नास्का प्लेट, कैरेबियन प्लेट स्मॉलर है, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन ये मेजर प्लेट है। सो यू मस्ट हैव हर्ड दिस इन योर जियोमॉर्फोलॉजी। सो plate tectonics refers to how humongous slabs of solid rock glide over earth mantle। आपको मैंने ये बता दिया कि जब नीचे प्लास्टिक लाइक मटेरियल है वो ऐसे घूम रहा होगा तो अबाउट दिस सरफेस विल मूव इन दिस डायरेक्शन। और यदि मान लीजिए वो इस दिशा में घूम रहा है ऐसे, सो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। दैट इज व्हाई देयर विल बी अ ट्रेंच होल काइंड ऑफ सिनेरियो, and this is what mid oceanic ridge। and whenever मान लीजिए this one is the Eurasian plate and this one is the Indian plate, and if it is moving in this direction, so this plate is moving in this direction because it is moving in this, so that is why continuously Himalayas height is increasing। and one more thing I want to add for geographical perspective, that the fastest moving plate in this world out of 7 major and 20 minor, that is Indo-Australian plate, and that is why Himalayas is increasing in a faster manner, and under every 50 years there will be earthquake and heavy earthquake which reactor scale is around 7 to 8 on Nepal, because Nepal is the main part where Himalayas exist। So these continental slabs shift, fractured, collide, causing earthquake, occur, mountain to grow, ocean and ocean to form। कई बार ओशन बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था। Besides Earth, पृथ्वी के अतिरिक्त no other known planetary body have plate tectonic, even we have researched that Mars do not have, मंगल के पास भी नहीं है। Significance, rocks captured carbon dioxide, a greenhouse gas that helps to warm the earth, but too much CO2 can lead global warming। तो यहाँ पर एक significance, इसका भी एक कारण है कि movement से कई बार क्या होता है, this movement causes volcanoes, earthquake, and volcanoes eruption will increase the carbon dioxide and methane in the environment। So
this is out, CO2 is spewed out as a gas through volcanoes. Without this process earth might freeze. if ऐसा प्रोसेस नहीं होगा, हो सकता है पृथ्वी फ्रीज हो जाए। ये एक परिकल्पना बताई जा रही है, राइट। चलिए, recently what we had seen in Indonesia, due to climate change, not only the cyclone, the monsoon pattern and various things is affecting, but also some oldest cave in the world that is located in Indonesia, it is also destroying gradually. So where it had happened, a new study found that one of the oldest pieces of world's human heritage, सुलावेसी आइलैंड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके, आप लोकेट भी करेंगे इसको। सुलावेसी आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया इज विदरिंग, ये झड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है एट अ अलार्मिंग रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और ऐसा क्यों है? कभी गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, कभी वर्षा ज़्यादा आ रही है, तो कभी वर्षा नहीं आ रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर सॉल्ट, नमक जो है पूरी तरह से क्रिएट हो जाता है। और जो सुलावेसी आइलैंड पे जो ओल्डेस्ट पीसेज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज है, वो तबाह होते जा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दी सुलावेसी केव आर्ट। तो आपको याद रखना है, इज मच ओल्डर देन प्री हिस्टोरिक केव आर्ट ऑफ यूरोप। ये बहुत पुरानी है, इसीलिए हिस्ट्री में पूछी जाती है। तो आपको मुझे एक और बताना है कि भारत के अंदर जो ओल्डेस्ट केव आर्ट वगैरह है, वो एमपी में भी आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, तो मध्य प्रदेश में है, और उत्तराखंड में। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं मुझे? कैन यू टेल मी? 11th क्लास का जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है, उसके फर्स्ट चैप्टर में ये दिया हुआ है। सो दीज प्लीस्टोसीन इरा रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन द केव्स ऑफ मैरोज पैंकैप रीजन। तो ये मैरोज पैंकैप रीजन जो है वहां पर पाया जाता है। प्लीस्टोसीन इरा रॉक पेंटिंग है, लगभग 20 है ना, लाखों साल पहले की है। सो अराउंड, जैसे यहाँ पर बोला गया एग्जैक्टली सुलावेसी डेट 45,000 से 20,000 ईयर्स। और लगभग आपको ये बात याद आ रही होगी कि इस समय पर ही होमो सेपियंस की शुरुआत हुई थी। होमो सेपियन होमो सेपियन कौन है? जो मानव का बायोलॉजिकल नेम है। तो एक तो आपको ये बात पता चल गई कि भाई ये ओल्डेस्ट है, सुलावेसी वर्ल्ड के ओल्डेस्ट स्टेंसिल ऑलमोस्ट 40,000 ईयर अगो। तो ये दुनिया के सबसे पुराने स्टेंसिल है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डिपिक्शन ऑफ एन एनिमल, ये भी पहली बार देखा गया। 45,500 साल पुराना एक पेंटिंग यहाँ पर है ना। एंड फाइंडिंग ऑफ स्टडीज में क्या पता चला है कि कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक है, सॉल्ट, ये लगातार यहां पर क्रिस्टल बन रहे हैं और वो ब्रेक कर रहे हैं इस आर्ट को, फ्लैग ऑफ द रॉक को। और इसको क्या बोलते हैं? देखिए, बड़ा शानदार नाम है, द आर्टवर्क मेड विद दिस पिगमेंट वाज डिकेइंग ड्यू टू हेलोक्लास्टी प्रोसेस। आपको पता होगा हेलोफाइटा क्या होता है, उससे अंदाजा लगा लीजिए। हेलोफाइटा क्या होता है? हेलोफाइटा जो खारे पानी में उगते हैं पेड़ पौधे, वैसे ही हेलोक्लास्टी का मतलब क्या है? नमक के कारण जो, ठीक है, हेलोक्लास्टी प्रोसेस। तो बहुत सिंपल है। दिस इज अ प्रोसेस ट्रिगर्ड बाय ग्रोथ ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल ड्यू टू रिपीटेड चेंज इन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। लगातार तापमान में और ह्यूमिडिटी, इसका मतलब आर्द्रता में, कॉजेज द अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई वेदर इन द रीजन, और इसके कारण ये सब हो रहा है। सेवरल नेचुरल डिजास्टर्स तो आ ही रहे हैं। सो व्हाट इज द रिकमेंडेशन? ये आपको पॉइंट याद रखना है कि रेगुलर फिजिकल एंड केमिकल मॉनिटरिंग ऑफ द केव आर्ट साइट वुड हेल्प। जैसे हमारे ओल्डेस्ट आर्ट एंड कल्चर की लोकेशन साइट्स हैं, जैसे दिलवाड़ा इन माउंट आबू, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल एंड मैनी मोर ऑफ चोलाज एंड डिफरेंट डायनेस्टी एटसेट्रा। सो वी नीड अ रेगुलर फिजिकल एंड केमिकल मॉनिटरिंग हियर ऑल्सो, इन सुलावेसी ऑल्सो। देखिए, अमेरिका ने एक बहुत शानदार टेक्नोलॉजी निकाली है, वैसे जापान भी इस पर काम किया करता था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? 3 से 13 सेकेंड्स
मैं आपको ये बता दूं एग्जैक्टली कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो पहले प्राइमरी वेव आती है, उसके बाद सेकेंडरी वेव आती है, ठीक है। प्राइमरी वेव इज नॉट दैट हार्मफुल और परनिशियस, इतनी खतरनाक नहीं है, इट इज नॉट दैट परनिशियस, बट सेकेंड वेव इज डिजास्ट्रस, इट कॉजेज द calamity on the earth. Right? So deep shake is an earthquake early warning system. तो ये एक early warning system है that uses artificial intelligence to predict how the ground will move during the trembler to give several second advanced notice. कितने सेकंड बताया मैंने आपको? 3 से 13 सेकंड। और ये अमेरिका जो है अपने ईस्ट कोस्ट में इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क और पुराने जो पैटर्न्स हैं, प्रीवियस पैटर्न्स जो रहे हैं अर्थक्वेक के, उसके आधार पर क्या होता है ये एनालिसिस करता है। इज इट क्लियर? सो इट यूजेस अ डीप न्यूरल नेटवर्क टाइप ऑफ एआई लर्निंग टू आइडेंटिफाई द पैटर्न फ्रॉम द पास्ट अर्थक्वेक इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट हाउ शेकिंग फ्रॉम न्यू क्वेक विल ट्रेवल। और यदि 3 से 13 सेकंड पहले अलार्म बज जाए तो हम काफी हद तक एक तरह से हम कह सकते हैं 3 से 13 सेकंड भी अपने आप में बहुत होते हैं अपने मन को बनाने के लिए कि यस वी आर गोइंग टू हैव अर्थक्वेक, सो जस्ट रेडी। ऑल सडन एनीथिंग इज हैपेंड दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, बट इवन 3 to 5 सेकंड 13 सेकंड वी विल हैव कंपैरेटिवली लेसर डिजास्टर। सो this could lead to faster processing, easier generalizability across the different earthquake prone region। इसका प्रयोग किया जा सकता है स्पेशली इन जापान। जापान इज ऑल्सो यूजिंग, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था रेडॉन के बारे में। Despite the fact that deep shake was given no information about the earthquake location or type, this AI based deep shake cannot provide you earthquake location, but it will generate an alarm before 3 to 13 seconds that happened, right? So I think ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। Let's continue with the next position। ये एक पुराना आर्टिकल पे मैं डिस्कस करने वाला हूं लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। So whenever I got a previous or old important news article, I'll cover here। So India rank at 3rd position in military expenditure। Why news? क्यों है भाई न्यूज में? Because the SIPRI is the institute, Stockholm International Peace Research Institute। तो आपको एक बार फिर मेरा क्वेश्चन है कि जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, एक तो 4 स्कैंडिनेवियन देश, in which continental these are located and what is the currency and capital of these countries। Stockholm is also one of the capital of Scandinavian country। So which country it is capital of? So on 26th April, it has published that top 3 countries in the military spending are USA, China and India। SIPRI का establishment 1966 में हुआ and it tracks the military expenditures, armed trades globally। SIPRI is independent international institute dedicated to research in conflict, armaments, arms control and disarmament। Because first and foremost we should have a data। If we have data along with it, they wants to calm down the countries and they wants that there should be disarmament for the peaceful world। So established in 1966, SIPRI provided data analysis and recommendation based on open source, policy makers, researchers, media and interest public। सो ये बहुत सारे रिसर्च पब्लिश करता रहता है। SIPRI इज रेगुलरली रैंक्ड अमंग द मोस्ट रिस्पेक्टिव थिंक टैंक वर्ल्ड वाइड। ये इसे दुनिया का सबसे रिस्पेक्टिव थिंक टैंक भी कहा जाता है। अब देखिए इसने क्या क्या रिजल्ट्स बताए। इन 2020 यूएस स्पेंट 39% ऑफ मनी ऑन मिलिट्री ग्लोबली। दैट मीन्स यदि ग्लोबली 100 रुपए खर्च होता है, 39 rupees alone spent by US, 13% alone spent by China and 3.7 third most is India globe share because we are importing, है ना, we are largest importer of the arms। So military spending all the top 3 countries and was high even during COVID-19 crisis also as compared to 2019 still we are facing this।
और दिस वार इन इजराइल गाजा, देर आर 57 कंट्रीज ऑफ OIC, Organization of Islamic, OIC Commission, Organization of Islamic Countries, OIC, 57 countries are under this, and all the European, most of the European and USA is inside of Israel. So it is a kind of war that will extend more, and now this spend on arms, it will increase gradually, because there's a dilemma. There's every country wants their deterrence. हर country अपना क्या है, सामने वाले देश को रोकने के लिए निवारक क्षमता चाहता है. So in terms of GDP, US spending was 3.7. So if we will talk about US total GDP is 3.7% is spending on what? In defense. China 1.7, India 2.9. So देखिए, and this is very high. We should spend such amount on hospital infrastructure, education. But the problem with India is two front war. That means two major countries, Pakistan and China, is always ready to war with India. And they are also creating a havoc situation in our internal security as well. They are paying money, funding, many kind of funding they are providing. So that is why India has to invest in this to remain, at least the citizen of India can confident enough that India is ready for 2.5 front war. In the time span of 2011 to 2020, American military expenditure dripped मतलब कम हुआ 10%. China increased its investment 76% and India increased 34% investment in this dimension. But still, US is on top. So CIPRI military expenditure in Asia, Oceania is higher by 2.5%. Asia and Oceania, that is a region of Australia, Indonesia, Vietnam, China, and many small island countries are there in Oceania. जरूर आप लोग इसको मैप में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है. So after these three, US, China, India, the other top countries are at 4th, Russia 5th, UK 6th, Saudi Arabia 7th, Germany, French 8th. These are the top spender. So CIPRI is also added that military spending as a part of GDP has reached a global average of, so there is a global average of overall global GDP, it became 2.4% in comparison to 2.2 was in 2019. See, 0.2% increase in the overall global perspective, that is really a cause of concern, and that is why CIPRI is considered as a greater think tank. So biggest year on year rise, and ये सबसे बड़ा year on year rise है military burden, and this military burden is not necessary for humanity. मानवता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. अब हम लोग बात कर लेते हैं गवर्नेंस की, है ना. हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, साथ ही साथ वी आर टॉकिंग अबाउट GS पेपर सेकंड. So global bond worth rate 695.34, this became a news, were sold during election in Assembly of Tamil Nadu, Pondicherry, West Bengal, Assam and Kerala. From 2018 when it started electoral bond, what are the electoral bond? I am about to talk about it. SBI के अंदर हम जाकर 1000, 10,000, 1 lakh, 1 करोड़ इस शेयर अमाउंट के 10, 20, 100 जितने हमारी कैपेसिटी है, वी कैन परचेज एंड वी कैन ट्रांसफर दिस अमाउंट टू ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, दैट पार्टी विच कंसिस्ट एट लीस्ट 1% ऑफ द वोटर, 1% ऑफ वोटिंग कास्ट इन द प्रीवियस इलेक्शन. केवल वही पार्टी को डोनेट किया जा सकता है जिसके 1% से कम वोटर परसेंटेज रहा होगा पिछले टेन्योर में, उनको नहीं किया जा सकता. सो दिस वाज अ प्रोसेस. और इसमें मैं आपको बता दूं कि 2018 का मतलब है बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए
लेट गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया था। पहले अपना अलग तरीका था और नो डाउट एनडीओ को बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड में सपोर्ट भी मिलता है, दूसरी पार्टीज को भी मिलता है, और बिकॉज it became a powerful चूंकि it is leading in country as well, so highest getter is also what, whom, बीजेपी, है ना। so highest ever, or but what we had seen even in election of central government election, right, national election also there was not such amount got. This is only this can be only provided in PIL, public interest litigation, this can be provided by RTI only, right, RTI. So we will take a look on a detailed analysis of this. So electoral bond is a, I think I have cleared to each and every point. So electoral bond is a financial instrument for making donation to political parties के donation के लिए, issued multiple of 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore without any maximum limit. 1 करोड़ के बहुत अमीर आदमी है, मान लीजिए धीरू भाई अंबानी है, या फिर टाटा है, या फिर एनीवन लाइक अडानी है, या एनीवन ऑफ द बिजनेसमैन, they had purchased like 1 crore into 100, so they are paying 100 crore to a particular political party. So State Bank of India is authorized to issue and encash these bond. Only State Bank of India is authorized. Now this is the prelims point of view. आपको prelims point of view से बिल्कुल clear होना चाहिए. Only State Bank of India is authorized, and these bonds are valid for 15 days only of the date of issuance. Bond are redeemable in the designated account of registered political party. Registered political party के designated account में सीधा जाता है. सो पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी डेफिनेशन बात की जाए तो रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 29A. ये 29A किसमें है, RPA एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, विच हैव secured not less than 1% of votes in the last general election. This is the basic requirement. To the assembly or parliament are eligible to open current account for redemption of the electoral bond, और 15 दिन के अंदर अंदर वो हो जाने चाहिए ट्रांसफर. द बॉन्ड आर अवेलेबल, और देखिए सबसे खास बात क्या है कि जो बॉन्ड खरीदता है, मान लीजिए मैंने बॉन्ड खरीदे और मैंने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिए, लाइक 100 करोड़ रुपए किसी व्यक्ति ने ट्रांसफर कर दिए, उसका नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता. द बॉन्ड आर, यही सबसे खासियत है. लेकिन एक्चुअल में देखिए एक बात बताइए, मान लीजिए मैंने 100 करोड़ दिए, नो डाउट मैंने दिया एनी पर्सन हु इज अ फाइनेस्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, ही डोनेटेड 100 crore, that means purchased 1 crore bond of 100 and transferred to a particular party. That party's account will show this, and automatically that rich person will tell that this amount is from my side. So yes, political party will believe him, and by whenever they got the chance, they will favor, right? They will favor, and they will have a deep root in the government party. So whatever they want, the political party will do according to that particular person. Like they will create the policy in favor of such person. So this is what it is a kind of bribe. I will say it is a kind of bribe. Yes or no? Bonds are, so that is why these electoral bond always in news. It is very important for your examination. So who is citizen of India and incorporated or established in India for a period of 10 days each of the month. So हम लोग जो ये a period of 10 days 1 to 10 month of January, April, July and October, केवल ये 10-10 दिन के 4 महीने के शुरुआती जो दिन है ना, वहां पर ही ये मतलब 1st to 10 जनवरी, 1st to 10th अप्रैल, 1st to 10 जुलाई, 1st to 10 अक्टूबर, यहां पर ये डोनेट किए जा सकते हैं. देखिए, a person being an individual can buy bond either singly or jointly with other individual. Donor's name is not mentioned on the bond. यही तो सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने एग्जाम के लिए. There are two key problem with it. One, lack of transparency.
एक तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एज द पब्लिक डू नॉट नो हु इज गिविंग व्हाट टू whom, तो किसी को पता ही नहीं किसको कितना क्या जा रहा है, व्हाट दे आर गेटिंग इन रिटर्न, और उनको मिल क्या रहा है रिटर्न में। देखिए एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति है, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सी टू टाइप ऑफ पीपल, वन काइंड ऑफ पीपल आर दोज हु आर डोनेटिंग, डोनेटिंग मतलब पुअर पब्लिक को डोनेट कर रहे हैं, so either they are gaining photographs, their image polishing they are doing, one thing is that if they are donating, second if they are secretly giving any poor people a donation, that is not reflected in any media, any kind of public fan following, there is no such kind of thing, but the person will get the power. I am talking about the spirituality, that I have donated, I am a satisfying person in this universe because I am donating this much and I am creating the lives of people happy. So again here something he is getting, if he is not getting fan following etc, but he is getting satisfaction. Sonu Sood is getting satisfaction by his effort, yes or no? So obviously they want something, if they really want to give the amount, they should pay to the poor, but they will get something in return by the political party, no doubt at all. So to that only the government through ministry has access this information. अब गवर्नमेंट जो है वो अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू पता कर लेती है कि भाई दिया किसने, सो फाइनली तो पता ही चल गया आदमी का। सो ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हाउएवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has said that the scheme is one step forward compared to old system of cash funding. पहले तो क्या होता था, डायरेक्टली कैश डाल दिया जाता था, दैट वाज अनअकाउंटेबल। कंपैरेटिवली ये ठीक है। देखिए अंधे से काना अच्छा, तो ये अच्छा तो नहीं हुआ, राइट? एक मतलब मैं कहावत के तौर पे कह रहा हूं, यस और नो, अच्छा तो नहीं हुआ। तो ये दिस इज नॉट द वे एंड सच काइंड ऑफ इलेक्शन कमीशन। और मैंने इलेक्शन कमीशन पर भी आपको एक डिटेल लेक्चर में बात की थी कि इलेक्शन कमिश्नर जो है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन द इंडिया। सो दिस इज अगेन इनट्रांसपेरेंट, है ना, नॉट ट्रांसपेरेंट। ऑल्सो रिसेंटली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, द लीड बॉडी ऑफ इंप्लीमेंटिंग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सीईसी के तहत हैज रूल्ड दैट द डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द इलेक्टोरल स्कीम डोनर विल नॉट सर्व एनी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड विल वायलेट द प्रोविजन ऑफ इटसेल्फ। आपको पता होगा 2005 का जो आरटीआई एक्ट है उसमें क्या प्रावधान है, आरटीआई का प्रोविजन यदि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, लोगों के हक अच्छे के लिए नहीं है, तो there is no need to reply the RTI activist about this information. This is Chief Central Information Commission has had the rules here. So I think ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई होगी इलेक्टोरल बॉन्ड की। US Global Entry Program, Indian security agencies in the past 2 years checked the एंटीसीडेंट मोर देन 9,000 इंडियंस। अब क्या है, देखिए सभी लोग यूएस में जाना चाहते हैं, जो पुराने कभी पूर्वज पहले के जो रह चुके हों वो जाना चाहते हैं यदि, तो अभी इन्होंने ओपन अप किया है और इसके लिए पास्ट 2 इयर्स में चेक किया है एंटीसीडेंट ऑफ मोर देन 9,000 इंडियन हु वांटेड टू एनरोल फॉर यूएस ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम, यूएस के अंदर आना चाहते हैं। लेकिन इस सब के लिए यूएस का जो डिपार्टमेंट है वो भारत के मल्टीपल डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट का जो एक पूरा नेटवर्क है, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, CCTNS, बीइंग यूज्ड फॉर द एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन। तो ये इसका प्रयोग किया जाए। CCTNS ये हमारे लगभग भारत के 97 पुलिस स्टेशंस हैं, उनमें आज की तारीख में रिकॉर्ड सब ऑनलाइन होता है, तो यहां से पूरा पता कर लिया जाएगा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, क्या है, राइट? सो द ग्लोबल एंट्री ऑफ अ यूएस कस्टम, तो यहां पर क्या है ग्लोबल एंट्री, अ यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, CBC, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन,
that allowed speedy clearance for low-risk traveler upon the arrival of US. Though the pilot project started in 2008, India became the member in global entry in 2017. पायलट प्रोजेक्ट अमेरिका में कब शुरू हुआ? 2008 में. इंडिया में भी ग्लोबल एंट्री के लिए कब से अलाउ कर दिया गया? 2017 में. ट्रैवलर आर प्री अप्रूव फॉर द प्रोग्राम्स आफ्टर ए रिग्रस बैकग्राउंड चेक. तो ट्रैवलर को तभी प्री अप्रूव मिलता है जब पूरा रिग्रस चेक होता है और उनको चेकिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया MEA, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन जाएगी, क्योंकि एम्बेसी से एम्बेसी में जाएगी, एंड इट टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड टैप अदर मिनिस्ट्रीज को भी देखते हैं, स्टेट पुलिस एंड डेटाबेस, एंड रन ए बैकग्राउंड चेक. और फिर एक बैकग्राउंड चेक होता है पर्टिकुलर दैट एंटेसेडेंट, जो पहले कभी रहा करते थे कि शुड बी अलाउड और नॉट टू अमेरिका. ये अमेरिका का प्रोसेस है ना, ग्लोबल एंट्री. CBC कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डज नॉट प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन. ये कोई एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है, ये तो एक चेकिंग प्रोसेसर. चेक हो गया उसके बाद आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं. और यहां पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम. ये किसका है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम, CCTNS, ये भारत का है. एंड CCTNS is centrally funded scheme developed by National Crime Record Bureau NCRB. NCRB के द्वारा सेंट्रली फंडेड स्कीम के तहत बनाया गया. मतलब इंटरनेट पर पूरा नेटवर्किंग है, जिसमें देखिए 97% ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री इज कवर्ड एंड इट वाज अप्रूव्ड इन 2009. तो ये कुछ ईयर्स आपको याद रखने होते हैं. नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत इस प्रोजेक्ट को जो है बनाया गया था. राइट. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक पुलिस फंक्शंस सिटीजन फ्रेंडली, लोगों को पता चल सके कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या एक्टिविटीज होती है, कौन कौन से लोगों के लिस्टेड है, क्रिमिनल्स कौन है. इंप्रूव डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल. तो इसका भी पता चल सके पुलिस को. राइट. एज we are aware about it that I have told you that every day I will cover a scheme and very important scheme भारत के लिए मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया. राइट. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो ये पहले नरेगा था, महात्मा गांधी बाद में जोड़ा गया. तो आपके लिए ये प्रश्न है कि कब नरेगा मनरेगा बना, विच ईयर, ये आपको बताना है ना. 2 अक्टूबर ऑन विच ईयर. ईयर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया. सो डेस्पाइट कोविड-19 पैंडेमिक द कंट्री हैज विटनेस्ड स्पीड एंड प्रोग्रेस इन वेरियस स्कीम. तो जो रूरल स्कीम्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है एक तो. और अभी पिछले दिनों में क्या हुआ, जैसे जैसे पैंडेमिक अभी रूरल एरिया में जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट्स बहुत हाई हो गई हैं, उसको कवर करने के लिए बहुत से प्रोग्राम्स, जैसे दीनदयाल उपाध्याय प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है ना. तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये गारंटी देता है द राइट टू वर्क, की काम करने का अधिकार है. 100 दिन मिनिमम 100 डेज की बात करता है. और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मॉनिटर्स द एंटायर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट. और आपको मैं बता दूं, मनरेगा में सबसे ज्यादा काम जो इस बार दिया है वो कौन सा स्टेट है? दैट इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस बार मनरेगा में. ठीक है. मेजर ऑब्जेक्टिव्स: not less than 100 days of skilled manual work as guaranteed employment in a financial year. एक पूरे साल में एक हाउसहोल्ड के एक सदस्य को कम से कम मिनिमम 100 दिन का काम मिलता है. रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स एंड प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी. अब जो मनरेगा के जो एसेट्स हैं कि वो लोग किसको निर्माण करते हैं गांव में, विलेजेस में, तो पॉन्ड्स का मतलब वही वाटरशेड मैनेजमेंट. क्योंकि देखिए एवरी विलेज में एक पॉन्ड होगा, तो जो पानी है वो वहां जाएगा और वाटर रिचार्ज का काम करेगा. परकोलेशन टैंक, जहां से पानी वही परकोलेशन डाउन हो जाए आसानी से, वाटर ब्लॉक्स में रिचार्ज करने, चेक डैम, रोड लेयर, इरिगेशन कैनाल इत्यादि ये बनाई जाती है.
तो लोगों को काम मिल जाता है और प्रोडक्टिविटी हो जाता है। इट इज अ ग्राम, और देखिए अदर फीचर क्या है, इट इज द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत विच अप्रूव द शेल्फ ऑफ वर्क। और देखिए कितना कितना डिसेंट्रलाइज्ड काम है। ग्राम पंचायत अप्रूव करती है शेल्फ ऑफ द वर्क अंडर द मनरेगा एंड फिक्सेस देयर प्रायोरिटी, कि ग्राम पंचायत कहां पर डेवलपमेंट चाहती है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल ऑडिट, तो सोशल ऑडिट ऑफ द मनरेगा वर्क इज मैंडेटरी, और इसको भी सोशल ऑडिट भी क्या है, सोशल ऑडिट का मतलब है वहां के लोग ही सोशल ऑडिट करते हैं। सो मनरेगा वर्क्स इज मैंडेटरी एंड लीड टू अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए 2021-22 में मनरेगा से दिस फाइनेंशियल 2.95 करोड़ पर्सन हैव बीन ऑफर्ड वर्क एंड thus completing 5.98 lakh assets, अलग अलग 5.98 different lakh of assets like dam, ponds etc generated and 34.56 करोड़ पर्सन डे, मतलब आप समझ गए लगभग 34.56 करोड़ पर्सन डे काम हुआ है। मतलब एक व्यक्ति काम कर रहा है, जितना उसका काम है उसको 34.56 करोड़ से आप मल्टीप्लाई कर दो तो सोचिए कितना सारा काम हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल है तेलंगाना बिकेम द फर्स्ट स्टेट, और ये अब मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो ये पायलट प्रोजेक्ट तेलंगाना की गवर्नमेंट, तेलंगाना बहुत बहुत आगे है, हैदराबाद इज द कैपिटल है ना, और आंध्र प्रदेश की जो भविष्य में कैपिटल होगी वो अमरावती होगी। तो इस प्रकार की जो पहल है वो पहली बार देखी गई है। द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इज फर्स्ट ऑफ इट काइंड प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग डिलीवरी ऑफ मेडिसिन थ्रू द मल्टीपल ड्रोन्स की मदद से मेडिसिन वैक्सीन भेजा जाएगा। विकाराबाद एरिया ऑफ हॉस्पिटल, तो अभी पायलट प्रोजेक्ट है इसलिए रिसर्च के तौर पर सेलेक्ट किया है। सेंट्रल पॉइंट ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन का मतलब क्या है, वैक्सीन्स को ठंडी जगह रखना होता है, कोल्ड स्टोरेज जहां होते हैं वहां पर मेडिसिन भी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। सो सेलेक्टेड पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर आर बोथ विद इन विजुअल लाइन ऑफ साइट। जो उसके ड्रोन की एक समस्या है कि वो क्या है, वो भारत में तभी अलाउड है यदि वो मान लीजिए मैं यहां से ऑपरेट कर रहा हूं और ये मुझे यहां तक दिख रहा है, तो यदि ये यहां पर नहीं दिखेगा तो इस तरह का ऑपरेशन अलाउड नहीं है। बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट तक अलाउड नहीं है। लेकिन द सेलेक्टेड पीएचसी बोथ विद इन द वीएलओएस, यहां पर इसको वीएलओएस और बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट दोनों के लिए अलाउ किया। और प्रोजेक्ट का एम क्या है, एम एट असेसिंग द अल्टरनेटिव लॉजिस्टिक रूट इन प्रोवाइडिंग से। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत डिले हो जाता है। अब देखिए ऑनलाइन सिस्टम होगा, ऑटोनोमस डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर हो जाएगा। प्रोजेक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। अप्रूव द स्टेट्स रिक्वेस्ट टू ग्रांट कंडीशन एग्जेम्पशन फ्रॉम द अनमेन्ड। और इनको देखिए जो कंडीशनल एग्जेम्पशन मिला है तभी तो इन्होंने अलाउ किया है कि BVLOS में भी अलाउड है इस प्रकार के ड्रोन्स, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है। मैं आपको पूरी चीज पढ़ाने वाला हूं। बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, तो इससे एग्जेम्प्ट किया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है पूरा डिटेल में आर्टिकल। सो प्रोजेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ मेडिसिन थ्रू मल्टीपल ड्रोन्स, अप्रूव्ड बाय अप्रूवल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। UAVs अनमैन्ड एयरक्राफ्ट विल बी यूज्ड। BVLOS और बियॉन्ड विजुअल लाइन में भी इसको अलाउड किया जाएगा। एंड द प्रोजेक्ट वुड लॉन्च इन 3 वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम पायलट, सबसे पहले पायलट, फॉलोड बाय मैपिंग कर दिया जाए रूट नेटवर्क की पर्टिकुलर रूट को फॉर द ऑपरेशन ऑफ ड्रोन फॉर द डिलीवरिंग वैक्सीनेशन इन द डिजायर्ड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और फिर डिजायर्ड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्विकली पहुंचाया जा सके। कोलैबोरेशन किसके साथ है भाई, तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कहां पर है भाई इसका मुख्यालय है ना, ये स्विट्जरलैंड। एंड हेल्थ नेट, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे जरूर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। हेल्थ नेट ग्लोबल इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच प्रोवाइड्स क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ प्लान फॉर इंडिविजुअल फैमिलीज एंड मेडिकेल। तो यही जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना किसी भी स्टेट के, कि वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को एक अम्ब्रेला के नीचे लाना। To assess the alternative logistic routes in providing safe and accurate and reliable
पिक अप एंड डिलीवरी हेल्थ केयर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर एंड स्पेसिफिक लोकेशन एंड बैक, वापस से भी आ जाए। हेल्थ केयर इक्विटी इन द रूरल एरियाज, तो इससे रूरल एरियाज में भी क्या होगा, पीएचसी तक क्विकली इस प्रकार से ये पहुंचाए जा सकेंगे, राइट। तो यहां पर हम लोग ड्रोन्स पर भी बात कर लेते हैं। अदर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग यूजिंग ड्रोन, इस प्रकार के और प्रोजेक्ट भी यूज किए गए। यस, ICMR सिमिलर परमिशन वाज ग्रांटेड टू द ICMR इन कंडक्टिंग feasibility study of COVID-19 वैक्सीन डिलीवरी यूजिंग ड्रोन। तो ऐसा ICMR को भी सिमिलर परमिशन ग्रांट किया गया है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज परमिटेड टू डिप्लॉय ड्रोन्स फॉर द एग्रीकल्चरल रिसर्च एक्टिविटी, तो यहां पर भी इस प्रकार का अलाउड किया गया है। अब देखिए ड्रोन्स क्या है, इस पर पढ़ना बहुत जरूरी है, साइंस एंड टेक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो गवर्नेंस वाले पार्ट में आ जाएगा आपका, बट टेक्निकली चीजें क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट किसी व्यक्ति के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, ऑटोनोमस भी होते हैं। 5 कैटेगरी के होते हैं। सबसे छोटे वाले हैं नैनो, जो केवल 250 ग्राम से कम के 250 ग्राम बिलो, 250 ग्राम टू 2 kg माइक्रो, 2 kg टू 25 kg स्मॉल, मीडियम 25 kg टू 150 kg एंड ग्रेटर देन 150 kg इज लार्ज। सो ड्रोन रेगुलेटिंग एक्ट की बहुत जरूरत आ चुकी थी, क्योंकि शादियों वगैरह में, मैरिजेज में इट वाज आल्सो यूजिंग। सो द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पार्टीशन द एयर स्पेस इनटू रेड जोन वेयर देयर इज नो परमिट, लाइक एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में एंड द बॉर्डर्स के अराउंड 50 किलोमीटर के दायरे में इट इज नॉट अलाउड रेड जोन। येलो जोन कंट्रोल्ड एयर स्पेस, दैट मीन्स विद परमिशन। ग्रीन जोन ऑटोमेटिक परमिशन, जहां पर अलाउड। सो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट क्या होता है ना, वेयर नॉर्मली विजिबल टू द रेंज ऑफ पायलट, पायलट को वो प्लेन दिख रहा हो, तो वो तो है विजुअल लाइन ऑफ साइट। बियॉन्ड का मतलब क्या है, इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी सीन, राइट। सो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बहुत सारे, सो यहां पर देख लीजिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021 स्टेट्स दैट, तो ये नया रूल क्या है, दैट ड्रोन्स विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट BVLOS, और यही मैं बोल रहा था, ये अलाउड नहीं है। लेकिन इस डिलीवरी सिस्टम में, तेलंगाना के इस पूरे डिलीवरी सिस्टम में उन्हें यहां पर अलाउ किया गया। मैंने आपको ऑलरेडी शायद ये बात बता दी है ना, पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गई होगी। यस, सो देख लीजिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS जो रूल 2021 है उससे एग्जाम्पशन इन्होंने दिया है फॉर द तेलंगाना, राइट। और ये मेडिसिन वगैरह की सप्लाई करेंगे। सो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जरूर याद रखना है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। सो आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, एडवांटेजेस वगैरह, डिसएडवांटेजेस आप एक बार अपने लेवल पे पढ़ लेंगे, रिस्क एटसेट्रा। चलिए अगली बात कर रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। बायोलॉजिकल एक नई वैक्सीन है, जैसे मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक, एस्ट्राजेनेका, राइट। इसके अलावा हम लोग बात करें सिनोवैक, सिनोफार्म जो चाइना की 2 वैक्सीन है, भारत की कोविशील्ड, कोवैक्सीन। तो इस प्रकार की दुनिया के अलग अलग, तो जॉनसन एंड जॉनसन जो बहुत ही लार्ज स्केल पर कंपनी है, अब वो बहुत बड़े स्केल पर भारत में ट्रायल करेगा पहले, उसके बाद वैक्सीन बनाने वाला है। ये सब कुछ हो गई है बात, राइट। So biological E is the name of this vaccine produced by Johnson and Johnson COVID-19 vaccine along with its own vaccine. This will boost overall vaccine production in the country. देखिए कितना लार्ज स्केल पर होने वाला है, 600 मिलियन, एक साल में 600 मिलियन वैक्सीन बनाएंगे। दैट मीन्स लगभग 60 करोड़ पीपल, 60 करोड़ वैक्सीन तैयार हो जाएंगे। A new vaccine partnership was unveiled फर्स्ट क्वाड समिट में एक नई पार्टनरशिप आई। द 4 क्वाड कंट्रीज नेमली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US एंड जापान डिसाइडेड टू पूल देयर रिसोर्सेज। इन चारों देशों ने डिसाइड किया पूल करने का। दे डिसाइडेड टू रोल आउट 1 बिलियन COVID-19 वैक्सीन बाय 2022 अकॉर्डिंग टू द प्लान। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन is to assist the biological E। तो यहां पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी मदद करने जा रहा है। देखिए पूरा प्लान क्या है, इंडिया में 600 मिलियन जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन डोजेस एनुअली बनेगी, मतलब 60 करोड़। एंड पर मंथ की बात करें
है ना, बायोलॉजिकल ई प्लान्स टू प्रोड्यूस 75 मिलियन टू 80 मिलियन डोजेस ऑफ इट्स ओन वैक्सीन इन हैदराबाद। और आप समझ गए होंगे ये मंथली होगा 7.5 टू 80, मतलब 7.5 से 8 करोड़। जॉनसन एंड जॉनसन, सो दिस विल बी अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सो वी विल हैविंग अ कंप्लीट वैक्सीनेशन। मेरे को लगता है अकॉर्डिंग टू दिस स्पुतनिक, जॉनसन एंड जॉनसन, here Covishield, Covaxin, so within 1 year almost all humanity of India will get vaccinated above 18 years. So Johnson and Johnson वैक्सीन को अप्रूव्ड कर दिया गया था यूएस FDA, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन भारत भी अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद इट, कई बार क्या होता है, many times this rejected the plea that this should be not allowed because it will be harmful. So finally, whenever there is a green signal from the United States Food and Drug Administration and the World Health Organization in India, Johnson and Johnson has sought for permission to conduct clinical trial. तो पहले clinical trial होंगे। It is a single dose, very important. It is a single dose vaccine. The other adenovirus based vaccine, ये भी adenovirus based है, जैसे Covishield है, such as Moderna and Pfizer. According to COVAX, India is likely to resume its major export of COVID-19 vaccine till, तो देखिए according to COVAX, because India need vaccine at high scale and that is why we are not exporting now that we had exported previously to many countries. Plasma therapy for COVID-19 treatment dropped, ये भी एक नया डेवलपमेंट सामने आया। many मंथ्स, लास्ट 1 ईयर से लगातार प्लाज्मा थेरेपी साउथ कोरिया एक्सेट्रा यूज कर रहा था। इवन अरविंद केजरीवाल हैज बेट फॉर इट। अरविंद केजरीवाल was very keen interest in plasma therapy. Now ICMR ने बोला है भैया ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट और कर रहा है और इसके कारण ज़्यादा मोर प्रॉब्लमेटिक it became. And why it is so, let me clear you the point. So recently dropped the plasma therapy from COVID-19 treatment. ICMR ने ड्रॉप कर दिया है प्लाज्मा थेरेपी। The blood component called plasma is one of the part of blood from the COVID-19 recovered patient is after 28 days of the recovery, one can donate the plasma to the COVID infected patient. Plasma is a rich source of antibodies, because if anyone having COVID positive, after 28 days of its recovery, there will be antibodies related to that particular disease. So we considered that these antibody will be helpful to the patient as well, that the fight against invading virus. But what is the problem? It involves, so how we collect the plasma? First and foremost, the blood collection practices में later plasma is extracted from the blood using the blood fractional process. Fractional का मतलब क्या होता है? We swing the blood more and more, and so that like we get buttermilk from the milk, right? In the same way, blood fractional process is there, right? जिसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ऑल्सो अ मशीन कॉल्ड एफेरेसिस। सो उस मशीन को क्या बोलते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एफेरेसिस, ये नाम याद रखना ऑलवेज। टू हेल्प, इट हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट द प्लाज्मा। This same technique was used in H1N1 influenza outbreak and H1N1 that means swine flu and Ebola outbreak. जब Ebola outbreak हुआ किसी रीजन में, वहां पर हमने इनको यूज किया। Now what is PLACID trial? September 2020 ICMR conducted PLACID trial. According to the trial, therapy neither reduced the number of death nor it prevent its progression. And other countries who researched on it, China, Netherlands have also reported that plasma therapy is not effective for COVID-19 treatment. Why plasma therapy is ineffective? Because the reason is the artificial supply of antibody. Why artificial supply? Because the
antibodies are some other person, not his own, make the infection even worse. This is because the phenomena called antibody dependent enhancement. In the plasma therapy, antibodies that are supplied artificially bind to the virus. So first and foremost, what is happening, those antibodies which will bind the virus, and now these antibody will entered into cell. Even they have bind, but it is entering into cell, and what is the functioning, it open up its RNA, and RNA will be bind with our DNA. In this way the virus entered the human cell, so even it bind, but it is entering into human cell. And antibodies are those which want to deter, stop, not to enter in the human cell. In spite this fact, patient is treated for COVID-19. On the other hand, during the vaccination of immune system produce, अब आप बोलेंगे so what vaccination is doing? Vaccination is its own antibodies, not the artificial supply, and thus vaccination provides lifelong immunity. तो ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है, और इसीलिए दो वैक्सीन से क्या होता है, जो एंटीबॉडीज हैं उनकी एक मेमोरी बन जाती है. सो अनदर मेजर ड्रॉबैक is that these artificial injected antibodies stay only for 3 to 4 days in the patient body, और ये केवल 3 से 4 ही दिन रहती है पेशेंट बॉडी में, उसके बाद so it will not be effective, and that is why we left it. तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, मैं शॉर्ट में ब्रीफ में बता देता हूं आपको. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर is opened in Pune. Pune is in Maharashtra. And why only in Maharashtra? Because Maharashtra is a large stretch of coastal land. It can export easily in the world. And Maharashtra Chamber of Commerce, Industries and Agriculture and NABARD. तो देखिए, Maharashtra Chamber of Commerce, Industries and Agriculture and NABARD ने recently launched first agriculture export facilitation center. भारत का ये कई सारे स्टेजेस में टॉप 2 टॉप 1 में रहता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के मामले में, एंड दैट इज व्हाई चूजन ऑस्ट्रेलिया. सेंटर विल एड इन बूस्टिंग द एग्रीकल्चर एंड फूड एक्सपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड it will be one stop shop to export agricultural food. Center is open to anyone who is involved in the agricultural export. It will provide guidance in the area of minimum residue level. So ultimately it will help in our export policy. Why agriculture export facilitation center is important? It is because in 2018 India launched agri export policy aimed to double the agriculture export. If agriculture export will be there, we can boost up the income of the farmers 2 times, we can say, in 2022. So the agriculture export facilitation center will help in India to achieve this target. Why only Maharashtra? महाराष्ट्र में ही ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा महाराष्ट्र में ही क्यों किया गया है? Because Maharashtra is the leading state in agriculture. It is one of the largest producer of onion in India. Today is emerging as an important horticulture state. है ना, बागवानी के लिए भी अलग अलग जो प्लांट्स है, अल्फांसो, मैंगोज इत्यादि. Soil and agro climatic condition are diverse in the state, like black soil etc. This allow state to have many varieties of the crop like rice, wheat, tur, gram, bajra, jowar, fruits, banana, mangoes, grapes, orange, cashew nut, cashew, kaju. So the state is leading producer, one of the leading है, वैसे मध्य प्रदेश है फर्स्ट पे. The second largest coarse cereal producer, second largest producer of soybean, sugarcane, cotton, third largest producer of sunflower. So that is why we have chosen Maharashtra. So ये आर्टिकल आप एक बार जो है why Antarctica's टेम्परेचर क्लाइमेट इज रीचिंग एट टिपिंग पॉइंट. और टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या है? अंटार्कटिका का जो मान लीजिए ये आइसलैंड है, बहुत मेजर आइसलैंड है, इट इज समवेयर ब्रेकिंग. इफ दिस आइलैंड ब्रोकन एंड इट इज सेपरेटेड, इट विल मेल्ट डाउन फास्टर, एंड दिस विल हैपन. सो अंटार्कटिका हेड टुवर्ड्स क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, इसके पीक पर होगा तो 2060 में.
दिस रिपोर्ट केम, राइट, मैनी आइस शेल्व्स हैं अंटार्कटिका में। तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आई थिंक आपके एग्जाम के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैंने दे दिया है दोस्तों। दिस क्वेश्चन आई हैव रिसेंटली टॉक्ड अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड। आप लोग पॉज कर लीजिए और एक बार पॉज कर लीजिए और आप अपने लेवल पर पढ़ के आंसर दीजिए। पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। और यहां पर यह बात का जरूर ध्यान रखें, यू हैड आस्क्ड नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? सो यदि इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेक्चर को आपने अच्छे से सुना है, डेफिनेटली दोनों पॉइंट सही हैं। आपको भी मैंने पढ़ाया है कि एसबीआई के द्वारा इश्यू होता है ये, एंड सिक्योरिंग एटलीस्ट 1% वोट इन द लास्ट जनरल इलेक्शन। यस, दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट पर आ रहे हैं हम लोग। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली ऑन 18th ऑफ मे इट वाज डे, म्यूजियम डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। और यहां पर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। और यहां पर पूछा है विच स्टेटमेंट विल बी करेक्ट है। तो पॉज कर लीजिए एक बार और फिर आंसर दीजिए। प्लीज पॉज द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। कौन सा इसमें सही है? आप पॉज कर लीजिए एक बार और आंसर दीजिए। और वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर दैट ऑल द explanation is also given in the end of the session or end of the PDF. So whatever PDF you are getting along with these videos, you will have solution with it. So I expect you that every one of you should follow each and every PDF so that you will have a complete compilation. There is no need to write each and everything here. So मैं आपको केवल बता देता हूं कि first point is incorrect here, second and third is correct here, right? आप एक बार पढ़ लेंगे इनको अच्छे से। Third question on your screen now. We had discussed about advanced chemistry cell. हमने रिसेंटली बात की थी, भारत ने भी हाल ही में इसको बनाया है ना। प्लीज पॉज इट और उसके बाद बताइए विच वन इज नॉट करेक्ट हेयर। यहां पर कौन सा गलत है ये पूछा गया। 1 2 3 एडवांस केमिस्ट्री सेल। तो देखिए ब्रीफ में बात कर लेते हैं ये वाला पॉइंट, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी, हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, एडवांस केमिस्ट्री सेल स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट बैक टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन रिक्वायरमेंट। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज PLI नॉट एप्लीकेबल, नहीं वो एप्लीकेबल था। यहां पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मैंने आपको बताया था कि ये इसे जो जितना अच्छा वेल मैनर्ड काम करेगा, जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा, गवर्नमेंट विल हेल्प इन ऑल पॉसिबल वेज इन डिफरेंट वेज, राइट। सो नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज इज लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री। मेटी के अंडर में है? नो, इट इज नॉट अंडर मेटी, राइट। तो सेकेंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट हियर। सो इनकरेक्ट पूछा गया है, व्हाट विल बी द योर आंसर? योर आंसर विल बी सेकेंड एंड थर्ड हियर। आप हमेशा पॉज करेंगे, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे। दिस क्वेश्चन हैड आंसर यहां पर करेक्ट पूछा गया है, सो सेकेंड एंड थर्ड यहां पर करेक्ट है। फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट हियर। एंड नेक्स्ट वाला आपको पॉज करना है। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अभी हमने बात की है मनरेगा की डिटेल में, मनरेगा स्कीम के बारे में। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? 2005 में एक्ट आया था। पॉज कर लीजिए एक बार। सो आई थिंक मैं आंसर देता हूं, आप लोग पॉज कर लीजिए एक बार, फिर एक बार पढ़ लीजिए। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। सो थर्ड इज करेक्ट हियर for the question number 4th. And the next question is recently Shanghai Cooperation Organization, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोथ इंडिया एंड मंगोलिया आर द मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के, क्या दोनों मेंबर हैं? इंडिया पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन खानक्वेस्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होस्टेड बाय मंगोलिया। तो यहां पर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, नीचे दिया गया आंसर। देखिए मैं आंसर बता देता हूं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर बिकॉज, अच्छा एक बात की, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया?
मंगोलिया की कैपिटल एंड करेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में आती है, बताइए, है ना। मंगोलिया इज लीस्ट डेंस्ड polluted country in the world. So India and Mongolia is the observer in Shanghai Cooperation Organization. India is the member country. Only 8 member countries are there in SCO. India participates actively in Khan Quest. Yes. One more you need to know, nomadic elephant. Nomadic elephant. So nomadic elephant is also a army exercise between India and Mongolia. Also Khan Quest training exercise जो 7 days की होती है hosted by Mongolia. Both the statement are not correct. First is incorrect because Mongolia is observer here, not member, and second statement is correct. So only second is correct, 2 is correct answer. I think आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी. So इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया था, बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर. सेकेंड इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, मैंने बताया था आपको 18 मई को, है ना, 18 मई को अभी सेलिब्रेट किया गया है म्यूजियम डे. सो यहां पर यूनेस्को इसका टेक केयर नहीं करता, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ICMO, ये आपको पॉइंट एक याद रखना है ना, ये बात आपको याद रखनी है. एंड इट वॉज क्रिएटेड not UNESCO is not the organization, right. ये कुछ डिटेल आप पढ़ लेंगे अपने लेवल पर, राइट. सेकेंड इज करेक्ट हियर, थर्ड इज करेक्ट हियर. एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे इन 2021, व्हाट वाज द थीम? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड रीइमेजिन. ये थीम था इस बार के इंटरनेशनल म्यूजियम डे का. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के लिए. तो कोई भी टॉपिक ऐसा रह जाएगा, आई विल कवर इन MCQs और आई विल कवर इन लेटर डेज, बिकॉज एग्जाम में ऐसा कोई भी पॉइंट ना हो दैट वी लेफ्ट. सो मैक्सिमम कवरेज आई विल प्रोवाइड यू इन करंट अफेयर्स, राइट. सो रिलीजियसली फॉलो दिस कंटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन advanced chemistry cell. I've told that first is correct. Second, Union Cabinet had approved production linked incentives and they have paid this amount for ACC, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है बिकॉज ऑफ द फेम जो है, फेम, व्हाट इज फेम बता सकते हैं आप मुझे? व्हाट इज फेम हियर? जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी होनी है भारत में, राइट, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे. और इट डू नॉट कम अंडर मेटी, इट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, ACC. National Program of Advanced Chemistry Cell Battery Storage is launched under Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. And the last question, fourth question is, this had already, we have cleared Manrega schemes I have cleared already. Mongolia is the observer state, not the member state of the Shanghai Cooperation Organization, first point. And what all other countries, other forum which both the countries are member, ये आपको पता होना चाहिए, in which Mongolia and India are the part. Asia Europe meeting, ASEM. Second is World Trade Organization meeting. Defense cooperation between India and Mongolia, all the three in which India and Mongolia participating. Nomadic elephant is the military joint defense exercise. Khan Quest is a joint training exercise. So second is correct. First is not correct because Mongolia is the observer country. So I think आपको MCQs, आपको content एकदम clear हो गए होंगे. As I have promised that I'll provide you the content only English. So each and every point must be clear to you. Just once go through it and also cover some syllabus concept along with this topic, and you will have a perfect knowledge in the current affair. So thank you so much for today. Right, thank you so much for today and enjoy learning, keep learning. God bless you everyone. We'll meet soon.